Hello students, welcome to the computer science class. Students, in the last class we studied about variables and assignments in Python. हमने Python में दो टॉपिक देखा था, variables and assignment. Then I started the topic input and output, जिसमें मैंने input टॉपिक को complete कर दिया था, जिसमें हमने input functions के बारे में पढ़ा था. Next I started the topic output. As I told before, to see output on a standard output device like monitor, we have to use a function that is available in Python called as print. Print function के बारे में हमने previous class में पढ़ा था, जिसके थ्रू हम किसी भी standard output devices में normally programming languages में जो output हम देखते हैं that comes on monitor में हम output देखते हैं. तो output devices में output print करने के लिए हमने एक function पढ़ा था that is print function. So I am going to continue with the topic output, जिसमें मैंने बताया था print function. In the last class we saw various examples how you can give different types of print expressions. Print function में हम different types of expressions को कैसे देंगे within parentheses. यानी कि सबसे पहले we can give strings. Print is a function. Within parentheses you can give the item or the value that you want to print on the screen. तो यहाँ पर आप string को दे सकते हैं. String मैंने बताया था sequence of characters surrounded by single quote, double quote और triple quotes. तो यहाँ पर हम string दे सकते हैं. For example, I am giving as ABC. Next we saw print function in which we can print the values like integers. Suppose if I give print, then directly I am giving a value that is a numeric value 10. In this way also you can give a print statement. Then you can give a floating point value. Floating means decimal point value also you can give within parentheses. Then you can give any items surrounded. For example, I have written hello. This is one item, one string, and another string world. Separately I have given two strings, two items, and output you will get as hello world. In this way also you can give print statement. Then you can give any computational expression. For example, 3.14 into r into r. ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको. इस तरह के एक्सप्रेशंस को भी आप लिख सकते हैं जिसमें आपको एक कंप्यूटेशनल एक्सप्रेशन दिया होगा. You will get a value. So in this way print function can be used to print output on a standard output device like monitor. Next, after this, now we are going to see the features of a print function in Python. What are the features of print function? सबसे पहला फीचर है it auto converts the items to strings. सबसे पहला फीचर हम देखेंगे. It auto converts the items to string. ये सारे फीचर्स हैं प्रिंट फंक्शन के. फीचर्स ऑफ प्रिंट फंक्शन. सबसे पहला फीचर है इट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम्स टू स्ट्रिंग. इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग एनी स्ट्रिंग वैल्यू, ये यहाँ पर जो डबल कोट्स में मैंने दिया है, डबल कोट्स से आपको पता चल जाएगा दैट इज ए स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग में आपको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ आई एम गिविंग अ वैल्यू ऑफ न्यूमरिक टाइप, जब हम न्यूमरिक टाइप देते हैं तो जब हम इनपुट फंक्शन मैंने बताया था तो वहाँ पर क्या होता है, वॉट एवर इनपुट दैट इज एंटर्ड बाय द यूज़र एवरीथिंग इज रेड एज स्ट्रिंग टाइप. उसको स्ट्रिंग टाइप में रीड किया जाता है. Because of that we used to convert this type of value by using int function. अगर आप integer type value input करवाते थे तो उसको integer type में convert करने के लिए from string type we used to use a function that is int. और float के लिए हम क्या use करते थे, float. इस तरह हमने input function में पढ़ा था. But in the case of print function, if I give input as numeric value or floating value, not the input value, whatever value that is going to be printed, if it is of integer type or floating type, then also there is no need to convert it into integer as well as floating. Is it clear to you? यानी कि आपको print function में explicitly int या float लिखने की ज़रूरत नहीं है in order to convert the output from string to integer as well as floating, because it auto converts the items to
string. So this is the first feature. Next feature of print function is it inserts spaces between items automatically. Second feature है it inserts spaces between, you can note it down, between items automatically. यानी कि जो आइटम आप विद इन पैरेंथेसिस देते हैं उसमें ये ऑटोमेटिकली स्पेस को इंसर्ट कर देता है. It inserts spaces between items automatically. We'll see one example. Suppose if I am giving as print, the first item is my, second item is name. Here I am not giving it giving a space, just I am writing my name is Naina. So this is the print statement. I have given my name is Naina. Each and every word I have given separately. मैंने इसको separately दिया है, comma दिया है. So everything is different. My name is item. 4 items are there. What feature says it inserts spaces between items automatically. यानी कि इस तरह जब आप स्टेटमेंट को लिखते हैं आपको आउटपुट कैसे मिलेगा स्क्रीन में. यहाँ पर मैंने आइटम्स के बीच में स्पेस नहीं दिया है. कॉमा के बाद डायरेक्टली मैंने डबल कोट्स में नेक्स्ट आइटम को लिखा है. अगेन आफ्टर कॉमा आई हैव गिवन इज नैना. सो देयर इज नो स्पेस बिटवीन द आइटम्स. नाउ बट व्हेन आई गेट द आउटपुट आई विल गेट द आउटपुट एज माई नेम इज नैना. इन दिस वे यू विल गेट द आउटपुट. यहाँ पर आप देखिए आउटपुट में हर आइटम के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस इंसर्ट हो गया है. One space is inserted automatically. So this is the second feature of print statement in Python. Automatically आप क्या होता है जब भी आप different items को देते हैं parenthesis के अंदर ऑटोमेटिकली हर आइटम्स के बीच में वो स्पेस इंसर्ट कर देता है. Why? Because the default value of sep, that is separator, sep आर्ग्यूमेंट का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्पेस है. समझ में आ रहा है. यानी कि आप यहाँ पर सेप करके आपने मेंशन नहीं किया है. आपको पता है सेप इज ए आर्ग्यूमेंट इन विच यू कैन गिव अ सेपरेटर वैल्यू. सेपरेटर में आप क्या देना चाहते हैं. दैट मीन्स इन ऑर्डर टू सेपरेट दीज 2 आइटम्स आप बीच में ऐसे सेपरेटर क्या वैल्यू देना चाहते हैं, कौन से सिंबल को यूज करना चाहते हैं, दैट यू कैन गिव. बट इफ आई एम नॉट मेंशनिंग सेपरेटर वैल्यू देन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस सेप आर्ग्यूमेंट इज स्पेस. इसी कारण से ऑटोमेटिकली स्पेस इंसर्ट कर लेता है आइटम्स के बीच में. बट इफ आई वॉन्ट टू गिव अ सेपरेटर वैल्यू, अगर हम चाहते हैं कि सेपरेटर में स्पेस के बजाय हम यहाँ पर कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू गिव एंड सिंबल, एम्परसेंड जो सिंबल होता है, अगर हम चाहते हैं कि हर आइटम्स के बीच में इंस्टेड ऑफ गिविंग स्पेस आई वॉन्ट टू गिव द सिंबल एज एंड, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा. जब आप प्रिंट स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं, क्लोज करने से पहले आफ्टर द लास्ट आइटम यू हैव टू राइट SEP, that is separator, then equal to, then within single quote, double quotes और triple quotes you can give the separator value. आप as a separator instead of space क्या देना चाहते हैं. Here I want to give and symbol, क्योंकि हम प्रिंट में and symbol को प्रिंट करवाना चाहते हैं. Now if I am writing like this, अगर हम यहाँ पर SEP लिखते हैं and symbol, then output will be my name is Naina. See here, the output is my name is Naina. Here instead of space, यहाँ पर space के बजाय जो मैंने सेपरेटर में सिंबल दिया है and symbol, that is given. आप देख सकते हैं पिछले आउटपुट और इस आउटपुट में क्या डिफरेंस है. पिछले आउटपुट में हमने स्पेस दिया था तो यहाँ पर स्पेस रहता था. यहाँ पर मैंने instead of space I have given a symbol as and symbol. So here in the output you will get as and in place of space. Is it clear to you? Now in this way you can give any separator value. आप and की जगह पे डॉट यूज करना चाहते हैं, डैश यूज करना चाहते हैं, यू कैन गिव एनी सिंबल एज ए सेपरेटर वैल्यू. जो वैल्यू आप वहाँ पर देंगे एज ए सेपरेटर वैल्यू दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. आपको हर आइटम के बीच में आपको वही सेपरेटर वैल्यू प्रिंट में शो होगा. नाउ थर्ड फीचर इज
it appends a new line character at the end of a line. Third and last feature of print statement is it appends a new line character, you can say, or a new line at the end of a line. Appends का मतलब होता है add करना. We'll see one example. Suppose if I am giving hello, this is one print statement. One item is given hello. Again I have given print world. This is the two print statements. One is hello and another one is world. What output you will get? You will get as hello world. आपको लगेगा कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को सेपरेट लाइन में लिखा है, इसीलिए आउटपुट भी आपको सेपरेट लाइन में 1 by 1 मिल रहा है. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ बिकॉज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ एंड इज न्यू लाइन. इसका मतलब जैसे मैंने पिछले फीचर से बताया था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और सेपरेटर इज स्पेस, उसी तरह जो एंड आर्ग्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो न्यू लाइन है. नॉर्मली हम न्यू लाइन के लिए स्लैश एन भी यूज़ करते हैं. तो यानी कि जब भी आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और आपने लास्ट में एंड आर्ग्यूमेंट, एंड के लिए क्या वैल्यू है वो आपने नहीं दिया है, तो वो क्या होगा? इट अपेंड्स अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ अ लाइन. ऑटोमेटिकली इट विल ऐड अ न्यू लाइन कैरेक्टर. वो मान के चलेगा कि एंड में आपका जो एंड आर्ग्यूमेंट है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड आर्ग्यूमेंट इज न्यू लाइन. इसीलिए उसके बाद जो भी स्टेटमेंट प्रिंट होता है दैट विल कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. समझ में आ रहा है? इसी फीचर के कारण जब हम यहाँ पर एंड आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट, आपको पता है डिफ़ॉल्ट क्या है? न्यू लाइन कैरेक्टर है. इसीलिए जब आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, आपने एंड आर्ग्यूमेंट कुछ भी और वैल्यू नहीं दिया है, तो डिफ़ॉल्ट क्या लेगा? वो न्यू लाइन लेगा. यानी इसके बाद वो मान के चलेगा कि इसके बाद जो भी प्रिंट स्टेटमेंट होगा दैट विल कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. अंडरस्टूड? नाउ इफ आई वांट टू गिव अ वैल्यू, अगर हम एंड में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम न्यू लाइन नहीं चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गिव एनी सिंबल लाइक डॉलर साइन, दैट मीन्स टू सेपरेट लाइन्स में प्रिंट होने के बजाय एक ही लाइन में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं. बट एंड में क्या है? स्लैश एन की बजाय हमें क्या प्रिंट होना है? डॉलर साइन प्रिंट होना है. दिस स्टेटमेंट विल बी सेम. अगेन आई हैव रिटन प्रिंट बोथ द प्रिंट स्टेटमेंट इन सेपरेट लाइन्स. प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर भी सेपरेट लाइन में है, लेकिन यहाँ पर हम एंड आर्ग्यूमेंट देते हैं. यहाँ पर कॉमा देना होगा, देन आपको लिखना होगा एंड इक्वल्स टू डॉलर साइन. जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में SEP लिखा था, यहाँ पर END आपको लिखना है, इक्वल टू देना है, देन विद इन सिंगल कोट और डबल कोट यू कैन गिव व्हाट सिंबल यू वांट टू गिव एज एंड आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पर मैंने दिया है डॉलर साइन. नाउ आउटपुट विल बी हेलो. एंड में क्या है? न्यू लाइन नहीं है, डॉलर साइन है, सो डॉलर साइन विल कम हियर. नेक्स्ट इज वर्ल्ड. अब यहाँ पर वर्ल्ड आपने दिया है नेक्स्ट लाइन में, बट आपको आउटपुट नेक्स्ट लाइन में नहीं मिलेगा सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट का. वाई? बिकॉज आपने न्यू लाइन को रिप्लेस कर दिया है डॉलर साइन से. तो आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड इन द सेम लाइन. आपको एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, इंस्टेड ऑफ न्यू लाइन के बजाय यहाँ पर जो सिंबल मैंने यहाँ पर दिया है वो सिंबल यहाँ पर प्रिंट होगा. सो द आउटपुट विल बी इन दिस वे. इज इट क्लियर टू यू? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. इट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम्स टू स्ट्रिंग. ऑटोमेटिकली आपका जो भी आप आइटम्स देते हैं, वेदर इट इज ऑफ न्यूमरिक टाइप और फ्लोटिंग टाइप, एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू स्ट्रिंग टाइप. आपको एक्सप्लिसिटली इंट या फ्लोट फंक्शन यूज़ करके जो कि आप इनपुट में करते थे वो आपको यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड फीचर, इट इंसर्ट स्पेसेस बिटवीन आइटम्स ऑटोमेटिकली. जो भी आप आइटम देते हैं कॉमा देकर, हर आइटम के बीच में वो ऑटोमेटिकली स्पेस इंसर्ट कर देता है, अनलेस यू गिव अ स्पेशल सिंबल टू अ सेपरेटर आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट, इट अपेंड्स अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ अ लाइन. इस तरह की एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर दो लाइन में हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है. अगर हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा? स्लैश एन ले लेता है, दैट मीन्स न्यू लाइन. सो
output will come in two separate lines. But if I am giving an end argument, अगर हम end argument देते हैं जिसमें मैंने एक वैल्यू दिया है, एक सिंबल दिया है डॉलर साइन, सो इन दैट केस द आउटपुट विल नॉट कम ऑन टू सेपरेट लाइन्स. आपको आउटपुट एक ही लाइन में मिलेगा और इंस्टेड ऑफ स्लैश एन न्यू लाइन की बजाय यहाँ पर वो सिंबल यहाँ पर शो होगा. होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज डेटा टाइप्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप्स. आपको अच्छी तरीके से समझना है डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन में. व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई type of data and set of valid operations for it. You can see what are the data types available in Python. It is numbers, string, list, tuple और dictionary. यानी टोटल 5 डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन में. नंबर्स है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्यूपल एंड डिक्शनरी. See students, data type means it identify the type of data that you are going to store and process. यानी कि डेटा टाइप से पता चलता है कि जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो किस टाइप का वैल्यू होगा. समझ में आ रहा है? इट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड इन पाइथन. सो सबसे पहला जो डेटा टाइप है दैट इज नंबर्स. द फर्स्ट डेटा टाइप वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. टोटल 5 डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन में. The first one is numbers. In Python, in order to store and process numeric data, numbers का मतलब numeric data को store करने के लिए या process करने के लिए there are 3 data types available. The first one is integers. Second is floating point numbers. And the third one is complex numbers. First one is integers, floating point numbers and complex numbers. ये सारे numbers data type के अंदर आता है. Integers में again it is of 2 types. One is integers signed and second one is boolean. यहाँ पर देखिए इंटीजर्स जो पहला है इंटीजर्स साइंड. इसमें बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स कम. आपको जो भी पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है या नेगेटिव नंबर्स दोनों के लिए सेम डेटा टाइप है इंटीजर दैट इज इंट. आप इंट यूज कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, वेदर द इंटीजर इज बिग और स्मॉल, आपको दोनों के लिए नंबर बिगर हो या स्मॉलर हो सभी के लिए इंट आपको यूज करना है. ओनली वन डेटा टाइप इज अवेलेबल टू स्टोर न्यूमरिक टाइप वैल्यू. देन सेकंड वन इज बूलियन. बूलियन में आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 वैल्यूज. वन इज ट्रू, अनदर वन इज फॉल्स. बूलियन में ओनली 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर देयर, ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0. ये 2 वैल्यू आता है बूलियन में. देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, एज आई सेड बिफोर, फ्लोटिंग का मतलब होता है जिसमें डेसिमल वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल 7.5, 16.25, इस तरह के जो वैल्यूज होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है वो किसके अंदर आता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में. तो यहाँ पर ध्यान देना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में ये जो आफ्टर डेसिमल जो प्रिसिशन है इट इज कॉल्ड एज प्रिसिशन. आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स होगा वो आपका यहाँ पर पाइथन में अप टू 15 डिजिट्स है. यानी आफ्टर डेसिमल यू कैन गिव 15 डिजिट्स एज प्रिसिशन वैल्यूज. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स में आपका इस तरह के एक्सप्रेशन को आप दे सकते हैं a प्लस bj, जिसमें 2 पार्ट होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, एंड बोथ द पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एज फ्लोटिंग वैल्यूज. यानी इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें 2 पार्ट होंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, और ये दोनों पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोटिंग वैल्यूज को ही यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डेटा टाइप दैट इज numbers, integers, floating point numbers and complex number. See on the screen, it is given in the table. Range of Python numbers. The first is integers, an unlimited range subject to available virtual memory. Second is booleans. 2 values are there, true and false. Then floating point numbers,
an unlimited range subject to available virtual memory on underlying machine architecture. It depends on the virtual memory. Then last one is complex numbers, same as floating point numbers because the real and imaginary parts are represented as floats. complex number floating point number की तरह ही है, क्योंकि इसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. द नेक्स्ट डेटा टाइप इज स्ट्रिंग. You can see on the screen, a string can hold any type of known characters, that is letters, numbers and special characters of any known scripted language. Then a Python string is a sequence of characters and each character can be individually accessed using its index. So students, in the string, as I told, it is a sequence of characters. It can contain letters. Letters means A to Z alphabet. Then it can contain digits 0 to 9, and it can contain special characters or special symbols. Any special characters @ and star, dot, comma, these are all can be used as a special characters and in strings. So in string data type, it consists of sequence of characters and each and individual character of a string can be accessed using its index. आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर है, किसी एक कैरेक्टर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है? इंडेक्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन एग्जांपल हाउ इंडेक्सिंग इज डन इन पाइथन स्ट्रिंग. सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड अ स्ट्रिंग, द लेबल इज नेम. वेरिएबल का नाम हम देते हैं नेम, जिसमें हमने एक वर्ड दिया है पाइथन. यानी कि हमने जो डिक्लेयर किया था वेरिएबल का नाम नेम दिया है एंड स्ट्रिंग इज, आई एम गिविंग इन कैपिटल लेटर. सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड लाइक दिस, आई हैव गिवन अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, द लेबल इज नेम एंड द स्ट्रिंग इज पाइथन. तो इंटरनली हाउ दिस स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द memory. First a label is created, a storage location is occupied, each and individual character occupies a block. ब्लॉक में मैंने दिखाया है PYTHON. अब यहाँ पर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है, सपोज आई वॉन्ट टू एक्सेस द कैरेक्टर T जो कि 3rd पोजिशन में है, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? आपको पता है आपको इंडेक्स यूज करना है. तो इंडेक्स कैसे यूज करेंगे? फॉर दैट here in Python, 2 types of indexing is used. One is forward indexing and another one is backward indexing. 2 types of indexing are used in Python. One is forward and another one is backward. तो सबसे पहले forward देखते हैं. इसी string को हम forward indexing में कैसे एक्सेस करेंगे? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जो पहला जो ब्लॉक है जिसमें कैरेक्टर स्टोर किया गया है P, द इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0. हमेशा याद रखना है स्ट्रिंग में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में द फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाइज द कैरेक्टर है 0. तो यहाँ पर पोजीशन में क्या होगा? इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा. सेकंड में क्या होगा? 1 2 3 4 5. यानी कि आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, तो लेंथ -1 अप टू लेंथ -1 तक आपका इंडेक्सिंग में होगा. देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए पाइथन में हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर 1 2 3 4 5 6, लेंथ -1 दैट इज 6 - 1 5. इसीलिए आप देखिए इंडेक्सिंग में लास्ट जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 5 है, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ है 0 से. तो ये आपको ध्यान देना है, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एंड होगा लेंथ -1. लेंथ मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग, दैट -1 वो आपका लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगा. ये होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड. फॉरवर्ड में आप इस तरह से मूव करते हैं 0 1 2 3 4 अप टू लेंथ -1.
सेकेंड वन जो इंडेक्सिंग है दैट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड में क्या करते हैं, हम लास्ट जो कैरेक्टर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो इंडेक्सिंग होगा वो बैक की तरफ होगा, इसीलिए इसको बैकवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होता है, -1 से शुरू होता है। जैसे मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ते थे, 0 से यहाँ पे फॉरवर्ड होता है जिससे पॉजिटिव रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर माइनस से शुरू होगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में माइनस से शुरू होगा और वो लास्ट से स्टार्ट होकर यहाँ पर बैक की तरफ जाएगा, इसीलिए इसको बैकवर्ड बोलते हैं। यहाँ पर इंडेक्सिंग फॉरवर्ड की तरफ मूव होता है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। नाउ एज आई टोल्ड, आई वॉन्ट टू एक्सेस द कैरेक्टर टी। अब अगर हमें इस कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम कैसे लिखेंगे? द लेबल इज नेम, इधर यू कैन राइट नेम ऑफ टी को एक्सेस करने के लिए अगर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं, व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू 2। आपको स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स का पोजीशन लिखना है, दैट इज 2। अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो बैकवर्ड में इसका पोजीशन क्या है, -4 है। यू कैन राइट, इधर यू कैन राइट नेम ऑफ 2 में देखिए आपका सेम कैरेक्टर टी है, या फिर अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग इसको यूज करना चाहते हैं तब आपको क्या लिखना होगा, नेम ऑफ -4। दोनों तरीके बोथ आर करेक्ट, आप दोनों में से किसी एक तरीके से लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस द कैरेक्टर टी। समझ में आ रहा है? इसी तरह अगर हम पी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ 0 और यू कैन राइट एज नेम ऑफ -6। अगर आप एन को एक्सेस करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं नेम ऑफ 5, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा 5, या फिर आप लिख सकते हैं नेम ऑफ -1। तो इस तरीके से पाइथन में स्ट्रिंग में 2 तरीके से इंडेक्सिंग यूज करते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि आगे जाकर आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेटा टाइप इज लिस्ट। सी ऑन द स्क्रीन, a list in Python represents a group of comma separated values of any data type between square brackets. The values in a list are internally numbered from 0 onwards. You can see the examples. Within square bracket, 3 examples are given. In the first example, numbers, numeric values are given in the list 1, 2, 3, 4, 5. In the second example, A, E, I, O, U, that means letters are given within single quote, that is vowels. And the third example, Neha, 102, 79.5. See here students, in list you can give comma separated values within square bracket. List में आप क्या देते हैं, different types of value of different data types. यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज देते हैं, all the values should not be of the same type. It is not necessary that all the values will be of same type. यानी जो आप विद इन स्क्वायर ब्रैकेट जो वैल्यूज दे रहे हैं वो एक ही डेटा टाइप का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें केवल न्यूमरिक वैल्यूज़ है, इंटीजर टाइप वैल्यूज़ है। सेकेंड वाला जो है इसमें लेटर्स है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़ है। इन द थर्ड वन यू कैन सी द फर्स्ट आइटम इज स्ट्रिंग टाइप, second one is numeric type, and the third one is floating point values. Students, here 2 things you have to remember. The first one is whatever values you are giving in a list, if it is of numeric type as well as of floating type, then there is no need to enclose the values within quotes. आपको quotes लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए numbers और floating के लिए सिंगल कोट या डबल कोट्स नहीं दिया है। बट इफ़ द वैल्यू इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, अगर जो वैल्यू आप दे रहे हैं लिस्ट में अगर वो स्ट्रिंग टाइप है देन आपको कंपल्सरी कोट्स के अंदर लिखना ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग, वॉट एवर वैल्यूज यू आर गिविंग इन द लिस्ट यू हैव टू एनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारे वैल्यूज़ को कॉमा देकर देना है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। 2 more topics of data types, that is tuples and dictionaries, are remaining that we will see in the next class. Till then, be at home and keep learning.